پاکستان کا مسائل سے نکلنے کا دوسرا سلوشن جس کو کہا جاتا ہے پاکستان کا گیم چینجر، پاکستان کی اور اس خطے کی اور ساؤتھ ایشیا کی تقدیر بدلنے جا رہا ہے، وہ دو چیزیں ہیں۔ جی ہاں، ایک ہے سی پیک۔ سی پیک بنیادی طور پر ہے کیا اور موجودہ مسائل کا حل سی پیک سے کس طرح سے ہے۔ گوادر پورٹ جو کہ ہمارے لیے ایک میں سمجھتا ہوں واقعی بہت بڑی اللہ پاک کی بلیسنگ ہے، گوادر پورٹ سٹارٹ ہو جائے جو کہ ہو بھی چکی ہے فنکشنل، لیکن باقاعدہ طور کے اوپر گوادر ہی کیوں ہے جو دنیا کی نظر گوادر کے اوپر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائے رب جلیل کے ابا برکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو شاہد میاں کا سلام۔ مائی اوپینین وتھ شاہد میاں کے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے جس کا بنیادی مقصد آپ کو بتانا ہے کہ پاکستان کے موجودہ مسائل کیا ہے اور پاکستان کو کن مشکلات کا سامنا ہے اور اس سے نکلنے کا سلوشن کیا ہے۔ تو جس میں سے میں نے اور میری ٹیم نے کچھ ورکنگ کر کے ہم نے کچھ 10 چیزوں کو ہم نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے ان 10 سیریز میں، 10 پروگرامز میں، جو بنیادی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان پر کام کیا جائے اور اگر ان کو اڈاپٹ کیا جائے یا ان کو امپلیمنٹ کیا جائے یا ان چیزوں کو ایگزیکیوٹ کیا جائے پاکستان میں کسی نہ کسی طریقے سے، تو پاکستان میں ایک نیا ریولیوشن آ جائے گا وہ ترقی کا، اور پاکستان کی انفلیشن کافی حد تک کم ہو جائے گی۔ ایک کوشش ہے ہماری تحقیق کے مطابق ہم آپ تک چیزیں رکھیں۔ اسی سلسلے میں گزشتہ ایپیسوڈ آپ نے دیکھی ہوگی جس میں میں نے ای کامرس کے اوپر کی تھی کہ پاکستان کو مسائل سے نکالنے کے لیے اور تجارتی ڈیفیسٹ سے نکالنے کے لیے اور آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں ای کامرس کا رول کیا ہے، جس میں نے بتانے کی کوشش کی کہ پاکستان میں ای کامرس ہی فیوچر ہے۔ اگر ہم ای کامرس کے اوپر کام کریں اور بنیادی طور پر اپنے بچوں میں اس کی ٹریننگ دیں اور بچوں کو سمجھائیں اور اسکول لیول کے اوپر سکلز کی طرح اور سکلز بیسڈ چیزوں کو لے کر آگے چلیں تو شاید ہم بھی چائنا کی طرح ایک بہت بڑی ترقی اور ایک اکانومی میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ ویڈیو کا لنک آپ کو میری اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ آج اسی تسلسل کا سیکنڈ ایپیسوڈ ہے جس میں میں کوشش کروں گا کہ پاکستان کا دوسرا سلوشن، مسائل سے نکلنے کا دوسرا سلوشن جس کو کہا جاتا ہے پاکستان کا گیم چینجر۔ پاکستان کا گیم چینجر ہے کیا جو پاکستان کی اور اس خطے کی اور ساؤتھ ایشیا کی تقدیر بدلنے جا رہا ہے، وہ دو چیزیں ہیں۔ جی ہاں، ایک ہے سی پیک۔ جی ہاں، سی پیک عام فہم میں آپ سب لوگوں نے سنا ہی ہوگا اور 2013 سے ہی ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں کہ سی پیک ہے کیا۔ آج میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ سی پیک بنیادی طور پر ہے کیا اور موجودہ مسائل کا حل سی پیک سے کس طرح سے ہے، اور سی پیک کیا واقعی گیم چینجر ہے، اور گوادر پورٹ جو کہ ہمارے لیے ایک میں سمجھتا ہوں واقعی بہت بڑی اللہ پاک کی بلیسنگ ہے۔ شاید اگر گوادر پورٹ سٹارٹ ہو جائے جو کہ ہو بھی چکی ہے فنکشنل، لیکن باقاعدہ طور کے اوپر گوادر ہی کیوں ہے جو دنیا کی نظر گوادر کے اوپر ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے میرے اس ویلاگ میں۔ اور میں اب بات کرتا ہوں سی پیک کے اوپر تھوڑی سی۔ جی ہاں ناظرین، سی پیک کا یہ جو خواب چائنا کا تھا، ظاہر تو بہت پرانا خواب تھا چائنا کا، اور چائنا اس سے بہت دیر سے اس کے اوپر کافی ورکنگ کر رہا تھا، لیکن اگر پاکستان سے کے حوالے سے میں بات کروں تو 2013 میں چینی وزیر اعظم نے دورہ پاکستان کے دوران اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں ایک ون بیلٹ ون روڈ بنانا چاہیے، اور سی پیک یعنی کہ چائنا پاکستان کوریڈور ایک ایسا دروازہ، ایک ایسا ڈور، ایک ایسا ہوا کا جھونکا اوپن کرنا چاہیے جو کہ ملک کی نہ صرف معیشت کے لیے ایک بنیاد کو چینج کرنے کے لیے کام کر سکتا ہے، بلکہ یہاں کے رہنے والوں کے حالات اور واقعات بھی بدل سکتا ہے۔ اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہوئے جب ورکنگ تھوڑی سی آگے بڑھی تو اپریل 2015 میں دونوں ممالک کے درمیان ایک سمجھوتا ہوا۔ اس وقت پاکستان میں پرائم منسٹر نواز شریف تھے اور وہ اور ان کی ٹیم اس میں احسن اقبال جو تھے وہ کہ سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے۔ وقت کی گورنمنٹ نے کام کیا اور یہ
ایک इसकी बुनियाद रखी गई, उसके ऊपर काम शुरू हो गया। इब्तदाई तौर पर इसमें 17,045 मेगावाट बिजली पैदावार करने के प्रोजेक्ट्स थे। ग्वादर बंदरगाह को फंक्शनल करना था, उसको बनाना था, स्टैब्लिश करना था। 9 इंडस्ट्रियल जोन थे जिनको वक़्त के मुताबिक इस्टेब्लिश करना था। सड़कों और रेल का बुनियादी स्ट्रक्चर भी इसमें शामिल था कि जिसमें जहाँ जहाँ से सी पैक के रोड्स गुजरेंगे, जहाँ जहाँ से ये मंसूबा फैलता जाएगा, वहाँ पर रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर और रेल का नए सिरे से इंफ्रास्ट्रक्चर इसको तरतीब देना था। नए ऑप्टिकल फाइबर जिसको कहते हैं ऑप्टिक्स और फाइबरिफिकेशन भी करनी थी, इसमें एक बुनियादी ये चीज़ भी थी। और 4 अर्बन मास ट्रांजिट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कि शहरों में और रूरल एरिया की तरफ इसको आहिस्ता आहिस्ता लेके जाना था। और ये तमाम प्रोजेक्ट्स नाज़रीन 2030 तक मुकम्मल होने थे और मुकम्मल होने हैं अभी तक के मुताबिक। कि इस पॉलिसी को देखें, अगर हम इस वर्किंग को देखें तो थोड़ा सा इसमें ठहराव कह सकते हैं या वक्ती तौर पर जो रुकाव हुआ था वो गवर्नमेंट की दूसरी गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से हुआ था, लेकिन अब दोबारा से 2022 में इसके ऊपर तेज़ी से काम शुरू हो चुका हुआ है। 27 प्रोजेक्ट्स इसमें 27 के करीब प्रोजेक्ट्स इसमें आलमोस्ट मुकम्मल हो चुके हुए हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही खुश आइन बात है। और ये चाइनीज गवर्नमेंट का पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर एक इत्मीनान है सी पैक के हवाले से, और एक हमारी टाइम टेस्टेड उनके साथ दोस्ती भी है, और ये प्रूव कर रही है कि हम इंशाल्लाह ताला 2030 तक इस तमाम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। 19 अरब रुपए की सरमायाकारी अब तक हो चुकी हुई है। 63 प्रोजेक्ट्स नाज़रीन इसमें बाकी है। और इसमें जो तख़ीर की वजह मैंने आपको पहले बताई थी कि हमारी सियासी तौर पर अनस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो पाए थे, लेकिन अब दोबारा से इसमें तेज़ रवि के साथ काम शुरू हो चुका है। नाज़रीन, मैं असल में बताना चाह रहा हूँ कि सी पैक ये सारी चीज़ों को बताने के बाद कि ये ना सिर्फ बलूचिस्तान की तकदीर बदलने जा रहा है, बल्कि मुल्क पाकिस्तान की तकदीर भी बदलने जा रहा है। शायद आम लोगों को इसके दूरदस्त नताइज का अंदाज़ा ना हो कि क्या है। पोर्ट जो है हमारे ग्वादर पोर्ट, जिस तरह मैंने अपने वी लॉग के स्टार्ट के ऊपर कहा, ये वाकई एक अल्लाह की ब्लेसिंग है। जब ये पोर्ट फुली फंक्शनल हो जाएगी, और जिस तरह वहाँ पर एयरपोर्ट भी फंक्शनल हो चुका हुआ है, और जहाँ पर वहाँ पर इंडस्ट्री भी जिस तरह के जोन्स बन चुके हुए हैं, और जैसे नाजरीन ये पूरे रोड्स फंक्शनल हो के एक जिस तरह से प्लान है, और यानी कि CIS कंट्रीज़ के साथ मिल जाएंगे, तो पाकिस्तान की वाकई तकदीर बदल जाएगी। अगर पाकिस्तान की पॉलिसी इसी तरह रही तो इसमें जो कि बलूचिस्तान के जो वहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ तबकात ऐसे हैं जो इससे इख्तलाफ भी करते हैं, और कुछ वो एक इख्तलाफी नज़रिया भी रखते हैं। वहाँ पे कौम परस्त जमातें जो भी हैं, वो समझते हैं कि हमारे हकूक़ के ऊपर ये किस्म का नाजायज़ किस्म का कब्ज़ा है चाइना की तरफ से। लेकिन शायद उनकी सोच गलत हो सकती है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हो या चाइना, दोनों ने हमेशा वक़्त के साथ प्रूव किया कि दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। ज़रूरत वक़्त की ये है कि 2030 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए। इससे पाकिस्तान की यकीन माने इन्फ्लेशन कम होगी, पाकिस्तानियों को रोज़गार मिलेगा। पाकिस्तान में जो डॉलर्स की आए दिन किल्लत रहती है, और ये एक्सपोर्ट का पाकिस्तान इशू रहता है, और हमें हमेशा IMF की तरफ जाना पड़ता है। यकीन मानिए, ट्रस्ट मी, अगर सी पैक का ये मंसूबा कामयाब हो गया और टाइमली एग्जीक्यूट हो गया, तो पाकिस्तान के वाकई हालात बदल जाएंगे। आप लोगों की हमने जब राय भी इसमें ली है, तो आम लोग समझते हैं कि हमें सी पैक से फ़ायदा क्या है। यकीनन फ़ायदा है सी पैक से, क्योंकि नाज़रीन दुनिया की बहुत कम बंदरगाहों में से एक बंदरगाह ऐसी है जिसके ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक की नज़रें लगी हुई है, वो है ग्वादर। हमारे जो दुश्मन ममालिक है, स्पेशली अगर मैं अफ़गानिस्तान की बात करूं, वैसे तो हमारा वो ब्रादर ममालिक है, लेकिन उनकी पॉलिसीज़ पाकिस्तान के साथ ट्रेड के ऊपर वो इख्तलाफ रखते हैं। इसी तरह इंडिया की बात करें, इंडिया ने हमेशा ही पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की कोशिश की, और सी पैक उसकी नज़र में हमेशा खटकता है और खटकता रहेगा उसको। लेकिन ये इंडिया के लिए भी चैलेंज है, ठीक है, कि भी इसके हम उसको बना के दिखाएंगे ये सी पैक का मंसूबा, ग्वादर
पोर्ट फंक्शनल होगी और यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े ट्रांजिट बंदरगाह होगी, दुनिया के लिए बहुत बड़ी तिजारत का मरकज़ बन जाएगा। शायद दुबई, यूएई और ये जीसीसी कंट्रीज भी हमसे पीछे रह जाए। यही वजह कि नाज़रीन दुनिया आज हमें गिराने के ऊपर, हमें मारने के ऊपर, हमें डिफ़ॉल्ट करने के ऊपर, हमें घुटनों के बल गिराने के ऊपर मजबूर है, जिसमें से ये मालियाती अदारे, स्पेशली अगर मैं आईएमएफ की बात करूँ, आईएमएफ ठीक है उसकी अपनी पॉलिसी होगी, लेकिन देखा जाए तो उन्हीं ममालिक का एक लॉजिक है, जैसे श्रीलंका में उन्होंने किया, जैसे बांग्लादेश में किया, वही चाहते हैं, यही चीज़ें वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसा हो, पाकिस्तान में भी अनस्टेबिलिटी की सूरत हाल इस हद तक चले जाए, इन्फ्लेशन इस हद तक चली जाए कि एंड पाकिस्तान को अपनी चीज़ें हमारे यहाँ गिरवी रखवानी पड़े। आपने देखा होगा श्रीलंका में एक पोर्ट ऐसी बनी थी, मैं थोड़ा सा तरीकी पस मंज़र बताता हूँ, जिसको चाइना ने टोटल फंडिंग किया था, और श्रीलंका की नाकस पॉलिसीज़ की वजह से वो बहुत बड़ी पोर्ट थी लेकिन वो चल नहीं सकी थी। और एंड क्या हुआ, चाइना ने उन्हें कहा कि आप हमारे पैसे भी दें और हमारा वो लोन भी आप वापस करें, तो उनके पास देने को, उसको चलाने के लिए इतनी बड़ी पोर्ट, जो उनके पास खजाना था कुछ था नहीं, उन्होंने वही पोर्ट जो उनकी कंट्री में थी वो चाइना को दे दी, और आज तक वो चाइना ही उसके ऊपर सारे मामलात और सारे बिजनेस को देख रहा है। ये होता है दूसरे कंट्री का इन्फ्लुएंस बढ़ने से या उसकी इन्वेस्टमेंट होने से एक राय ज़रूर ये पाई जाती है, लेकिन ये तब होता है जब हमारे अपनी पॉलिसीज़ में फुकदान हो, जब हमने अपने लिए कुछ तरजीहात ना किया हो। एनीवेज ये 2030 तक की ये एक प्रोजेक्ट है। मैं समझता हूँ जिस तरह से मैंने कहा था, ई कॉमर्स पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट पाकिस्तान अगर उसके ऊपर तमाम पॉलिसीज़ को आसान कर दे, तमाम टैक्सेस को वेव कर दे, इसी तरह सी पैक भी पाकिस्तान के लिए वाकई ही रियल में गेम चेंजर है, और ये पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। ऑब्वियसली जब पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी तो पाकिस्तानियों की तकदीर भी बदलेगी, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ उस वक़्त जो भी और मौजूदा वक़्त में जो भी हुक्मरान हैं, अगर उनकी नीयतें साफ़ हो, उनके यहाँ करप्शन का कोई एलिमेंट ना हो इस प्रोजेक्ट में, तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह की ब्लेसिंग है पाकिस्तानियों के लिए कि पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें हैं कि जो वाकई ही पाकिस्तान के हालात और वाक़यात बदल सकती हैं। पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस भी नाज़रीन से ख़त्म हो जाएंगे, पाकिस्तान का रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर एक मिसाली बन जाएगा जिस तरह से मैंने कहा है, और पाकिस्तान में ना सिर्फ चाइना बल्कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी आई भी है और आएगी भी। जैसे आप देखा है कि सी पैक के मद में ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है। इसके अलावा जीसीसी कंट्रीज़ भी चाहते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो, और वो भी पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हुए हैं। लेकिन अगर कोई नहीं चाहता तो वो पाकिस्तान के दुश्मन नहीं चाहते, जिसमें सरफ़हरिस्त हिंदुस्तान है, उसने हमेशा ही कोशिश की है। सारी चीज़ों को अगर कंक्लूड करूँ तो मैं एक वर्ड के ऊपर पहुँच रहा हूँ कि जैसे कि वन बेल्ट वन रोड और वन ट्रेड है, इसी तरह ही पाकिस्तान के मसाइल का हल भी यही है। तो हमें चाहिए, हमें दुआ गो होना चाहिए, हमें पाक फ़ौज से हमेशा एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि उन्होंने हमेशा इस प्रोजेक्ट को दिलो जान से इस प्रोजेक्ट को परवान चढ़ाने की और इस प्रोजेक्ट की हिफाजत करने की और इस प्रोजेक्ट को तरफ से शटर करने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है पाक फ़ौज को। शायद मौजूदा गवर्नमेंट हो या फिर माजी की गवर्नमेंट हो, इनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से कुछ देर इसमें गैर तसलसल या गैर यकीनी की सूरत हाल ज़रूर रही है, लेकिन आने वाले दिनों में और मौजूदा दिनों में इसके ऊपर जिस तरह से काम शुरू हो गया है, उम्मीद है कि 2030 से पहले हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे और हमारे मुल्क की तकदीर बदलेगी। अगले प्रोग्राम में मैं तीसरी अहम चीज़ बताऊंगा कि पाकिस्तान के लिए तीसरी गेम चेंजर के तौर पर क्या चीज़ ऐसी है जिसके होने से पाकिस्तान के हालात और वाक़यात बदल सकते हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।